ہمارے نبی نے کم کھایا اور کتنی زوجات کی آپ کی ایک وقت میں 9. صحابہ کم کھاتے تھے اور اتنی بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کے میدان جنگ میں لڑتے تھے. اچھا 3 کام جو مذہب نے بتائے ہیں وہ کر لو. سمجھدار ڈاکٹر بھی اسی کا مشورہ دیں گے انشاءاللہ. جو مذہب نے 3 کام بتائے ہیں نا صحت کے حوالے سے وہ کر لو. نمبر 1 مذہب گوشت کھانے کی آپ کو ترغیب دیتا ہے تو کھا لیا کرو. ایسا نہ ہو کچھ تحقیق بدل جائے اور بعد میں کہیں کہ جی جو گوشت نہیں کھاتے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو کہ الٹا ہو جائے معاملہ. تو جو کھا رہے ہو تو اپنی ذمہ داری پہ مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلی بات گوشت نہ چھوڑو. دوسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھایا کرتے تھے یا زیادہ کھانے کی ترغیب دی ہے یا بھوکا رہنے کی ترغیب دی ہے؟ کم کھانے کی نہیں, بھوکا رہنے کی. کم کھانا تو بہت کم کھانے کا مطلب کھائیں. ہمارے نبی کی جو سیرت ہے وہ ہے اے اللہ ایک وقت کھانے کو ملے تو شکر ادا کروں اور ایک وقت بھوکا رہوں میں تو صبر کروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں, جو حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر آپ نے فرمایا یفشو الکذب, جھوٹ پھیل جائے گا, یعنی برائی آنا شروع. اور انہی برائیوں میں آپ نے بتایا کہ جھوٹی گواہیاں, اور انہی میں آپ نے بتایا کہ لوگ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ حرام کھانا شروع کر دیں گے, نہ نہ نہ, حلال کھائیں گے مگر زیادہ. تو زیادہ کھانے کو بھی کس میں شامل کیا جا رہا ہے؟ برائی میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی امت اتنی بری ہو جائے گی خوب کھانا شروع کر دے گی, کھانا بہت کھائے گی. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو کم کھانے کی ترغیب ہے, کم کھانے کی ترغیب ہے. اتنی ترغیبات ہے نا کم کھانے کی کہ ہمیں تو اپنے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہمارا ہوگا کیا. یعنی اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملے اور اپنے پراٹھوں کے ہم نے کسی نے بتا دیا کہ یہ 2 پراٹھے صبح ناشتے میں کھایا کرتے تھے, تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں پہ پکڑ نہیں ہوگی. یہ ترغیبی چیز ہے, کوئی واجب حکم نہیں ہے, لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہم بہت کھاتے ہیں بھائی, بہت کھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, یہ میں ٹاپک کمپلیٹ کرتا ہوں, جب چل پڑا ہے نا اتنا ہو گیا تو اس کو مکمل. آپ نے جو بھائی موضوع دیا وہ کہاں گئے بھائی, پرچی دی تھی وہ میں اس پہ ضرور بیان, آپ جمعے کے بیان میں آتے ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ضرور, میرے ذہن میں پہلے سے یہ ٹاپک تھا, میں اس پہ ضرور بات کروں گا انشاءاللہ. تو خوب سمجھ لو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت کی بات چلی ہے نا, تو اکارڈنگ ٹو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں, وہ چند چیزیں نوٹ کر لو تو وہ آپ کو زندگی پہ فائدہ پہنچائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. طعام الواحد یکفی الاثنین, ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جتنے میں 2 آدمی, ایک آدمی سحر ہوتا ہے نا, اس میں اصل میں 2 کے لیے کافی کا کیا مطلب, سحر تو نہیں ہوتے, لیکن جتنی آپ کو انرجی چاہیے, جتنا آپ کو زندہ رہنے کے لیے, ایک مناسب لائف گزارنے کے لیے جتنی خوراک چاہیے, تو جتنا ایک آدمی کھا رہا ہے وہ کتنے کھانا شروع کر دیں, 2 کھانا شروع کر دیں تو وہ کافی ہو جائیں گے آپ. اور ہمارے ہاں جتنا ایک کھاتا ہے, جتنا ایک کو کی خوراک ہے تو وہ 2 کی کھاتا ہے. وہ اس حدیث پہ کیسے عمل کر رہا ہے, الٹا. جتنا ایک جن میں سحر ہو جاتا ہے نا, حدیث تو کہہ رہے ہیں تم ایک میں جتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو آدھے میں اس کا آدھا کر دو. اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ آدھا کرو گے نا, پھر جو آپ گوشت کی یخنی پیو گے, وہ جو ہمارے نبی نے یوم نہر میں, مزہ آئے گا آپ کو. صحیح ہے نا, مزہ آئے گا, مزہ آئے گا آپ کو. تو آدھا کر لو اس کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کافر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کرتے تھے چاہے مسلم ہو غیر مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دودھ پلایا. ہمارے یہاں دودھ پیا جاتا ہے ناشتہ کرنے کے بعد, 2 پراٹھے کھانے کے بعد, پھر آپ 1 گلاس دودھ پیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیلشیم ملے گا, فیٹ ملے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے کہ اس کی کھانچے کہیں ہے ہی نہیں جہاں جا کے یہ فٹ ہو. ہم جو نبی کی سیرت میں دودھ دیکھتے ہیں نا, اس میں 2 چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں. ایک تو شدید بھوک میں بھوک مٹانے کے لیے دودھ پیا گیا ہے, یعنی دودھ ایز اے کھانا استعمال کیا گیا ہے. ہمارے ہاں دودھ کو کھانا بولتے ہی نہیں ہے. دودھ جب شدید بھوک لگ رہی ہوگی نا تو پہلے خوب بریانی اور نہاری طبیعت سے پھوڑنے پھاڑنے کے بعد پھر کہیں گے, کیونکہ حکیم صاحب نے کہا کہ رات کو دودھ پی کے سونا چاہیے, لہذا پھر دودھ پی کے سو کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے ہلاک ہو جائے گا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں, غزوہ احد میں دیکھو نا, سب صحابہ کو شدید بھوک تھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے حکم دیا یہ دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے نا, تو شدید بھوک تھی صحابہ کو, 2 3 دن کے سے بھوک لگ رہی تھی, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ہی پیالہ تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دائیں طرف سے پلانا شروع کرو. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اتنا مجھے بھوک لگی, میرے سے میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا, اللہ نے برکت اتنی رکھی تو سب نے سحر ہو کے پیا اس کو. حضرت ابو ہریرہ کے برکت دے دی اللہ نے, ایک معجزہ نبی کا ظاہر ہوا. حضرت ابو ہریرہ نے پیا, کہتے ہیں اور پیو اور پیو, سحر ہو گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس طرح کی اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے, دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو 2 چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا, دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب
मेरे ये क्लिप चलाया गया, किसी ने कहा देखो लोगों को कच्चा दूध पीने का मशवरा दे रहा है जरासीम वाला, तो दूध कच्चा जब पियो तो फौरन निकालो और फौरन पी जाओ, अगर रख लिया तो फिर कच्चे का नहीं, हम भी कहते हैं भाई वो तो फिर डॉक्टर लोग बोलते हैं उसमें। और फिर खासतौर पर जो गवाला तो कच्चा भी पिला रहे हैं ना, तो उसमें गवाला भी तो पिला दे रहे हैं ना दूध, तो भैंस जितना दे रही है उसमें गवाला का भी उतना अपना खून पसीना शामिल है, गोबर की छींटें और पता नहीं क्या क्या, उसको तो लाजमी अपनी गाय हो अपनी बकरी हो और तमीज से थन धो के तमीज से निकाला हो तो वो कच्चा ही बेहतरीन है। वो आप मेरे मशवरे पे पी के देखें, आपको बॉयल में और कच्चे में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। आप ऐसे टमाटर होना शुरू हो जाओगे, पेट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो हमारे नबी ने हमेशा दूध हलब शाता, दूध निकाला और दूध पिया, कच्चा पिया है। तो ये दो चीजें। खैर, तो मैं इस कर रहा था कि एक कुछ लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनमें गैर मुस्लिम भी था, तो आपने उसका इकराम किससे किया? भूख लग रही थी सबको तो आपने दूध पिलाया। उन्होंने 7 प्याले दूध पिए उस गैर मुस्लिम ने। पहले के प्याले भी बड़े बड़े होते थे, एक प्याला आपने फरमाया और उसने कहा और, दूसरा आपने फरमाया और उसने कहा और, 7 प्याले पी गया। 8वें पे उसने कहा बस मेरा पेट भर गया, सैर हो गया, मैं चला गया, मुसलमान हो गया। वो नबी के अखलाक और आपकी सीरत को देखकर अगले दिन दोबारा आया, फिर आपने दूध पेश किया, उसने 1 प्याला पिया, आपने दोबारा पेश किया, उसने कहा शबीअतु, मैं सैर हो गया हूँ। नहीं ये बात समझ, हालांकि उसको नबी ने कम खाने की तरगीब, उसको तो इस्लाम अभी सीखने का मौका ही नहीं मिला ना। तो ऐसे मौके पे आपने फरमाया अल काफिरु याकुलु फी सबअति अमआ, काफिर 7 आंतें भरता है, वल मुमिनु याकुलु फी मिअन वाहिद, मोमिन 1 आंत भरता है। क्या मतलब? मोमिन की खुराक काफिर से 7 गुना कम होती है। उन सहाबी को ना ये पता था कि इसको मेडिकली मुझे कोई फायदा होगा इसका, ये भी नहीं मालूम था। कुछ डॉक्टर थे उस जमाने में समझाने वाले ना, उन्होंने नबी से कम खाने की तरगीबें सुनी थी। क्या मतलब? अब हदीस का आज लोग कहते हैं कि आज तो काफिर कम खा रहे हैं, मुसलमान तबीयत से फोड़ रहे हैं, तो ये तो माज़अल्लाह हदीस गलत हो गई। फिर तो खूब समझो हदीस का मंशा क्या है कि मुसलमान शहवत परस्त नहीं होता, काफिर शहवत परस्त होता है, उसकी ख्वाहिशात रुकती नहीं है, कभी खाया जाएगा खाया जाएगा। आज जो काफिर कम खा रहे हैं उनको डॉक्टर लेकर आया इस पर, जबकि मुसलमान अगर कम खाता है डॉक्टरों के मशवरे की जरूरत नहीं है, उसकी वैसे ही अल्लाह ने दुनिया से बेरगबती रखी है कि भाई क्या है सारा दिन जुगाली करते रहो, बस ठीक है ना, चंद दिवाले हो गए, नींद भी कम आती है उससे, इंसान कम खाता है तो चाको चौबंद रहता है। तो जितने भी हमारे अकाबिर बुजुर्ग गुजरे हैं हिंदुस्तान में, आप देख लो उनकी खुराकें बहुत थोड़ी थी। क्यों थोड़ी थी भाई? वो उनको दीन के काम करने हैं, वो कहते हैं ज्यादा खाओ तो नींद आती है, तो खाओ इतना ना जितना एफोर्ड कर सको, तो ख्वाहिशात से इंसान निकल जाता है। तो आज जो काफिर थोड़ा खा रहे हैं ना, वो डॉक्टरों की रिपोर्टें हैं, डॉक्टरों के मशवरे हैं। वरना अगर सेहत का मामला ना हो तो फिर काफिर ख्वाहिशात नफसानिया में ज्यादा होता है, मुसलमान कम होता है। तभी तो देख लो ना जिना कितना ज्यादा है वहां पे, वो थोड़ी औरत के बगैर गुजारा कर सकते हैं। यहाँ 30-35 साल उम्र हो जाती है, शादी नहीं होती और गुजारा बहुत से लोग चला रहे होते हैं। तो मुसलमान में आज भी ख्वाहिशात नफसानिया पे कंट्रोल दूसरों की निस्बत ज्यादा है। बात यह है कि उनको मोटिवेशन मिल रही है डॉक्टरों से, हमें ना मजहब से मिल रही है और ना डॉक्टरों से मिल रही है। डॉक्टर साहब को आप किसी दावत में ले जाएं, आपसे ज्यादा डबल, वो डॉक्टर जो मेरा बयान नहीं सुन रहे उनकी बात कर रहा हूँ, आप ज्यादा डबल आप जाए, वो सिगरेट पी रहे होंगे, तो आदमी कहता है यार जब इतनी नुकसान दे तो ये क्यों पी रहा है भाई ठीक है ना। तो आप खूब समझो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुसलमान 1 आंत भरता है और काफिर 7 आंतें भरते हैं, इसमें ख्वाहिशात नफसानियां कम होती हैं। तो आपने उन सहाबी को अप्रिशिएट किया कि नहीं किया? अगर ये अमल गलत होता तो आप उनसे कहते कि तुम जब काफिर थे तो तुमने 7 प्याले पिए थे, तुमने इस्लाम कबूल करके सिर्फ 1 प्याला पिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे तुम्हारे जिस्म में कमजोरी हो जाएगी। ना 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 ना, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को कमजोर देखना नहीं चाहते। अगर ये चीज कमजोरी का सबब होती तो हमारे नबी क्या फरमाते कि कमजोर मोमिन अल्लाह को ताकतवर से ज्यादा महबूब है, लिहाजा कम खाओ ताकि कमजोर हो जाओ। हम तो ये देखते हैं पैगंबर की सीरत में कि आपने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कमजोर मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब हमारे नबी हमें ताकतवर देखना चाहते हैं, कमजोर नहीं देखना चाहते, फिर भी कम खाने की तरगीब दे रहे हैं। तो मेडिकली अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये प्रूव हो गया कि कम खाने से ताकत ज्यादा आती है। ये साबित हो गया कि नहीं हो गया? दोनों चीजों को अगर आप मिलाओ, फिर अगर कोई डॉक्टर कहते हैं कि फोड़ते जाओ, कहते नहीं है डॉक्टर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसका मतलब भाई तुम हमें वो बात बता रहे हो जो इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल अगेंस्ट है, तो आपकी तहकीक कल बदल सकती है। आपकी तहकीक क्या हो सकती है कल? हमारे नबी ने कम खाया और कितनी ज़ौजा की आपकी एक वक्त में 9 सहाबा कम खाते थे और इतनी भारी भरकम तलवारें उठा के मैदान जंग में लड़ते थे। तो मैं 2-3 बातें बता रहा था कि पहली बात, गोश्त को खुराक का हिस्सा बनाओ, ये हमारे मजहब की तरकीब है। डॉक्टर कहते हैं अगर कोई नॉर्मल है, अगर हाँ कोई किसी को हार्ट पेशेंट बन गया है, उसको डॉक्टर मना कर रहे हैं तो फिर वो जाने डॉक्टर जाने। इस्लाम तो नॉर्मल लोगों की बात कर रहा है ना। अबे कोई शुगर पेशेंट बन गया उसको तो खजूर भी नुकसान देगी ना, जो पेशेंट नहीं है उनकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरा काम, बल्कि उसको तो शहद भी नुकसान देगा। दूसरा काम, पहला तो गोश्त हो गया, मैं आपको इस्लाम की रोशनी में सेहत का नुस्खा बता रहा हूं। दूसरा काम क्या है? कम खाओ, फोड़ो नहीं, यानी भूखे रहो, समझते हो। और तीसरा काम हदीस में आता है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती से पनाह मांगी है।
सहाबा सारे चुस्त थे, घोड़े से तेज सलमा इब्न अकवा दौड़ा करते थे। आपने उनसे ये नहीं फरमाया कि तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज क्यों है, इतनी तेज क्यों दौड़ते हो, भैया घोड़ा पीछे रह जाता है तुम आगे निकल जाते हो, बल्कि इसको अप्रिशिएट किया गया। सहाबा तीरंदाजी सीख रहे हैं, घुड़सवारी सीख रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और सुस्ती से पनाह मांगी गई। तो तीसरी चीज क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, जिसको हम आज की इस्तिलाह में क्या कहेंगे? फिजिकल एक्टिविटी। हदीस में आता है एक दफा मदीना में खतरा हुआ कि किसी ने हमला किया है, खतरा यानी कोई खबर फैली। सहाबा कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की पुश्त पे बैठ के इतनी रफ्तार के साथ गए हैं ना देखने के लिए कि वाकई ये खबर सही है या गलत है, और बहुत तेज रफ्तारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर आए। तो आज फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई है? अब घोड़े तो है नहीं, क्या आप घोड़े पे बैठे हैं? घोड़े पे बैठने में कितनी ताकत, फिर घोड़ा भागता है, हड्डियां हिलती हैं, घोड़ा जितना थकता है उतना ही बंदा थक जाता है। फिर पैदल भी भागते थे लोग, चलते भी थे, भागते भी, लंबे लंबे पैदल सफर होते थे। तो आज ना जॉगिंग है ना वॉकिंग। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आप कह सकते हैं जॉगिंग की अलग से कोई तरकीब, भाई जो काम इस्लाम चाहता है वो अगर इसके बगैर नहीं हो रहा तो फिर ये चीज खुद ब खुद उस तरकीब में दाखिल होगी कि नहीं होगी? अल्लाह आपको चुस्त देखना चाहते हैं, सुस्ती से हदीस में पनाह मांगी है, तो जो काम सुस्ती का जरिया और सबब बन रहा है उस काम से भी पनाह मांगी होगी कि नहीं होगी? तो ये तीन काम हो गए, और चौथा भी एक ऐड कर लो इसमें, सोने की तरतीब। वो मेरी अपनी नहीं बनी हुई तो मैं इसलिए ज्यादा नहीं उसमें बोलता, क्योंकि हम भी कराची में है ना, सारा सोने जागने की तरतीब की ऐसी की तैसी हुई है। लेकिन हमारे नबी ने तरकीब देर से सोने की दी है या जल्दी सोने की दी है? काइंडली थोड़ा सा बता दें। और देर से 12 बजे उठने की तरकीब दी है या आप तो रात के आखिरी हिस्से में नमाज पढ़ा करते थे। तो ये चार काम सोने जागने का ना, ये जो सोने का 9 बजे टाइम है असल सोने का, जो मेडिकली भी ऐसी साबित हो गई। तो ये चार काम तमीज से, और दोपहर कैलूला लाजमी किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आपने फरमाया कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कैलूला किया करो, शैतान कैलूला नहीं करता, सारा दिन जागता है शैतान, उसके काम बहुत है ना। शैतान जो है ना कभी भी आराम नहीं करता। तो अगर आप आराम नहीं करते, हर वक्त काम काम, कायद आज़म ने फरमाया था काम काम और बस काम, तो कायद आज़म का ये मतलब नहीं था। उनका था कि सोने के बाद जितना टाइम उठो तो काम में लगाओ, वो मजीद सोने में ना लगाओ। तो आपने क्या किया कि वो सारा जो है ना, हर वक्त लोग पागलों की तरह जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं ना, वो हर वक्त पागलों की तरह पैसा कमाने में लगे हुए हैं, सोते ही नहीं है, और सोते हैं तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। फिर मोबाइल तो ज़ाहिर है नींद को गायब कर देगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी नींद सोते थे। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना हल्के से खराटों की आवाज़ आती थी। जब ये गहरी नींद होती है ना, तो नाक से ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूली से खराटों की आवाज़, ये जब गहरी नींद होती है तो फिर ऐसी आवाज़ आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी उम्र में जिस्म मुबारक भी थोड़ा सा भारी हो गया था, तो गहरी नींद सोया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों पर अमल, खैर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि चार काम कर लो तो इंशाअल्लाह जैसे तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर होती हैं, तो तमाम दवाएं बड़ों की पहुंच से भी क्या होंगी? दूर होंगी। यदि प्यास लगे पानी पियो, जी नेचुरल लाइफ। उसके बाद अगर फिर कोई खुदा न ख्वास्ता बीमारी होती है, फिर डॉक्टर जितने गिलास का मशवरा दे रहा है उसके मशवरे पे उतने। इससे पहले डॉक्टर को कि खाम खा के मशवरे लेने की मेरे भाई कोशिश ना करो। खाम खा के जो है ना खतरनाक हो जाएगा वो, ऐसा ना हो रिसर्च की भेंट चढ़ा दे, कल वो रिसर्च क्या हो जाए। अब मिसाल के तौर पर वो जो अब तक सब्जी खा रहे हैं, 15 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, वो सब्जी खा रहे थे, कह रहे थे गोश्त नहीं खाना चाहिए, चिकन भी नहीं खा रहे थे वो। तो अब अगर बिलफर्ज रिसर्च चेंज हो गई, नहीं गोश्त खाना चाहिए, सब्जी नहीं खानी चाहिए, तो वो तो कहेंगे यार हमने तो 20 साल क्या कर दिए। लोग दावतों में चिकन भी फोड़ रहे हैं, दुम्बे भी चर्बी डाल डाल के पका के फोड़ रहे हैं, और हमारी ऐसी की तैसी, महरूम हो गए। तो हिंदू रहते होंगे 90 साल 100 साल, मुझे नहीं पता उसका, सब्जी से रहते हैं, लेकिन गोश्त, हमारे नाना माशाल्लाह गोश्त खोरते 99 साल में इंतकाल हुआ है, वो भी अल्लाह की कुदरत थी, तो वरना इतनी सेहत थी उनकी। तो रिपोर्टें तो आपको हर तरह की मिल जाएंगी। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, बहुत ही आज बयान आउट वो हो गया बिल्कुल, ये जल्दी से समेटता हूँ।